Lalu ji, if you will continue in office and you will fight an election, नहीं, where is that? you have not read the ordinance. आपको मुझे पढ़ाना पड़ा है. You read it again. I will read it for you. People of country is watching. People of country are watching you, Lalu ji. नहीं watching, आप पढ़िए ना. Okay, so let's read this part together. Let's read the part together. Lalu ji, I'll read the ordinance for you. अरे भाई बात ना हमको बताइए ना कि अगर हाई कोर्ट 90 दिन के बाद स्टे नहीं करेगा सेंटेंस को, एडमिट एंड स्टे, तब तो कैसे रहेगा मैम? लालू जी, आप मेरी बात सुनिए प्लीज. नाउ यू लिसन टू मी कामली. मुझे लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप बहुत उत्तेजित हो रहे हैं. उतना पढ़िए ना. और आप चीज को हम उत्तेजित नहीं हो रहे हैं. तो आप ही पढ़िए ना पहले. तो पहले पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ने दीजिए. आप आइए, लेट अस रीड इट टुगेदर. ना आइए पढ़िए. यू ट्रस्ट मी टू रीड इट फॉर यू, राइट? हमारा सुन लीजिए पहले. एक मिनट ना फिर पढ़ के आपको झूठा साबित कर. Lalu ji, if this ordinance had gone through, don't fool the people of this country. If this ordinance had gone through, पहले मुझे you would have continued मैं जो समझा from Chapra. नहीं, मैं जो समझा हूँ उसका पहले सुन लीजिए. आप पहले तब हमको गलत साबित. लालू जी, मेरी बात आप सुनिए. The government passes an ordinance which broadly sticks to the old Representation of People's Act but makes one key change to section 8(4). Now you listen to me, Lalu ji. And I know one thing about you. You are a master's in political science. You know everything. Graduate in political science. But you're a master in politics. And you're quite an expert in law. You understand I'm not dishonest. You understand everything. हाँ बता दिया आपको. You know everything, Lalu ji. But when the thing with you is, Lalu ji, you are pretending you don't know. You are pretending today in this interview that you don't know this particular aspect of the law. I will read it out for you now. Let me read it out for you because you've challenged me, Lalu ji, onto the law. My question is, the one change it made was that instead of giving a 90-day window for an appeal, the new ordinance says a disqualification under any of the said subsections shall not, in the case of a person who on the date of conviction is a member of parliament or the legislature of a state, take effect. If an appeal or an application for revision is filed with respect of the conviction and sentence within a period of 90 days from the date of the conviction, and that conviction is stayed by the court. So fundamental point is fundamental point is very simple. If this ordinance had gone through, then Lalu Prasad would be allowed to continue in office if Lalu Prasad's appeal was admitted in a higher court within 90 days and the conviction was stayed. Only thing, you would not be entitled to vote and you won't get a salary. You don't need an MP's salary to survive. So, Lalu ji, in other words, broad picture, as they say in Hindi, mota moti baat ye hai कि आपकी political career affect नहीं होती. Your political career would not be affected by whatever the verdict of that lower court would be. You would fight the elections from Chapra yourself. You would be in the Lok Sabha yesterday, Lalu ji, when that debate was on. And that is the impact this had on your political career. Lalu ji, please don't fool the people of this country. This ordinance would have helped you. And that's why you are unhappy. बिल्कुल लालू प्रसाद के लिए ऑर्डिनेंस नहीं है. अबे सुनिए नहीं, आपका प्रूफ कोई, यू आर नॉट जस्टिस. हम लॉ के विद्यार्थी, एडवोकेट हम भी हैं जी, हम जानते हैं. सीधी बात लिखी हुई है, लालू के लिए नहीं. एनी मेंबर अगर लोअर कोर्ट से कन्विक्ट होता है तो 90 डे जो अपील का टाइम है, 90 डे अगर वो अपील करता है तो हायर कोर्ट में, बात सुने, जो कानून की जो व्यवस्था है, ना आप बनाए हो ना हम बनाए हैं, अगर वो 90 डे तक अपने अपील को करता है और हाई कोर्ट एडमिट करता है, सेंटेंस को स्टे कर देता है, तो वो मेंबर यानी कंटिन्यू कर सकता है. सुनिए पहले, सुन रहा हूँ. कंटिन्यू कर सकता है जी, कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये माइनस क्या, सैलरी नहीं मिलेगी, वोट नहीं कर पाएंगे, उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अहमियत नहीं है भाई. बताए तो हाई कोर्ट स्टे करेगा तब जी, इक्वटल कर देगा तब,
ये कैसे मान लिया गया कि लालू को बचाने के लिए हुआ? क्योंकि 5 दिन पहले हुआ, आपके वर्डिक्ट के 5 दिन पहले हुआ। 5 दिन। और राहुल गांधी ने खुद कहा, एक मिनट आप ये बात सुन लीजिए, राहुल गांधी ने खुद क्या कहा जब उन्होंने ऑर्डिनेंस को रबिश किया। उन्होंने मान लिया कि ये सब जो होता है ये पॉलिटिक्स के कारण होता है, हम ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। ही से सब पार्टीज करती हैं, वी मेक दिस कॉम्प्रोमाइजेस फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। क्या आपने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी? नहीं, राहुल गांधी, आपने राहुल गांधी जी के विषय में क्या बोले नहीं बोले हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। क्यों? आप हमने नहीं सुना, नहीं हमने नहीं सुना। क्यों नहीं सुने? ना हम सुना ही नहीं। हो सकता है आपने नहीं, हर बात सुनना कोई जरूरी नहीं होता। आपने बिल्कुल सुना। जितना अब आपका जितना सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वॉच करते हैं कौन क्या बयान दिया, वो काम हम लोग का नहीं है। आपने राहुल गांधी ने आपके ऑर्डिनेंस के बारे में जो कहा, जब बोला कि इस ऑर्डिनेंस को उठा के फाड़ के डस्टबिन में वो तो देखा कि नॉनसेंस फेंको। आपने सुना? तो आपने लालू से कैसे जोड़ दिया? बिकॉज वो आपके बारे में नहीं, दिस इज बैड, गलत है। इट्स एब्सोल्युटली नहीं, ये प्रिजम्पशन सारे लोगों का, ये अभी जात वर्ग का और मीडिया का, ये तो बहुत गंदा बात है लालू जी, लालू यादव के ऊपर। अगर राहुल गांधी वहां पे आके नहीं कहते कि इस ऑर्डिनेंस फाड़ दीजिए और इसको, तो हमको क्या रिलीफ मिल जाता? तो आप आज इस वक्त संसद के सदस्य होते। कैसे होते? पुराना ही जो इलेक्टेड थे रहते, हमारा हाई कोर्ट में हमारा सेंटेंस। आप इलेक्शन फाइट करते, कन्विक्शन जब हो गया तो हमको तो जाना ही था ना। तो आप करते ना। अरे भाई, आप रहते तो बात तो यह है। अरे कोर्ट करता तब ना। मुझे तो एक ही बात, कोर्ट एडमिट करता तब ना बैठते कोर्ट, मगर अभी तो वो भी नहीं हो सकता है ना लालू जी। नहीं हो सकता, बाहर हम तो आप बिल्कुल मजबूती से आएंगे। यू मस्ट बी वेरी मजबूती से आएंगे और सबका जवाब देंगे। यू मस्ट बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड लालू जी। नो, आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड। ऑफ कोर्स यू आर फ्रस्ट्रेटेड। नहीं, हमारे मन में जो आप जो फीड कर रहे हैं, टीस जरूर है। ये टीस मतलब है कि लोग अभी तक चंद लोग बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे लालू यादव चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? लालू यादव है क्या सब कुछ पार्टी? हमारा अखाड़ा, हमारे लोग लड़ेंगे और लड़ने का टाइम आ गया। अखाड़ा क्या? अखाड़ा जो पहलवानों का अखाड़ा होता। आपकी तो फैमिली डायनेस्टी है। हाँ तो रहेगी, राबड़ी देवी है, क्यों नहीं रहेगी? तेजस्वी है, अगर हम है नहीं, एक हम है तो आप एक बोलो, बाकी नहीं है, बाकी लीडर का नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी टू डैमेज मी। मतलब हमारा कोई बेटा या बेटी आ गया, राबड़ी देवी आ गई तो डायनेस्टी हो गई। बिल्कुल डायनेस्टी। बाकी किसी फैमिली में है ही नहीं। उनकी भी डायनेस्टी है, आपकी भी है। हाउ आर यू डिफरेंट? तो आप लोग तो मीडिया के लोग, आप तो मीडिया के लोग यही देख के ना घुस रहे हो। आप पार्टी में गया ना एक लड़का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसको पता लग जाएगा। मैं क्या पॉलिटिक्स में घुस रहा हूँ लालू जी जो आप? अरे आप पॉलिटिक्स में ही घुस रहे हैं। सारे पॉलिटिशियन को आप ग्रिल करते हो आगे। हाँ, तो मैं तो जर्नलिस्ट का काम करता हूँ। जर्नलिस्ट का काम आपका, आप व्यू इम्पोज करते हो, न्यूज नहीं। बिल्कुल। You don't believe that, Lal. I believe. I understand. Shall I tell you? बहुत फेयर रहना चाहिए। Should I tell you what my view is? Should I tell you what my view is, Lalu ji? This is my 6th interview with you. Should I tell you what my view is today? You are sitting in front of me. I'll tell you my view. बोलो। My view is that, and you let me complete, Lalu ji, is that you're very frustrated because you are very angry at Rahul Gandhi. But you cannot. No. You let me. You let me complete now. You are angry at Rahul Gandhi for two reasons. अब आप अपना केस मत बनाइए। हम राहुल गांधी पर या किसी पर हमारी कोई नाराजगी नहीं है। जो करेगा हम कर लेंगे, गलती करेंगे हम भोगेंगे। ठीक है, आप सुन लीजिए। नहीं मतलब नहीं, Why are you so defensive? भाई इसलिए Why are you defensive? नहीं, डिफेंस की बात नहीं। आप जो इंटरव्यू ले रहे हो, अब मैं बोल रहा हूँ कि हमको कोई शिकायतें नहीं है किसी से, हमको कोई शिकायतें नहीं। लेकिन कोई आदमी सोचेगा लालू यादव और नवराज को बयान दिया। आप ग्रिल कर रहे थे राहुल गांधी को, हम लोग को अच्छा थोड़ी लगा। आप नरेंद्र मोदी से माफी मंगवाना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी को।
आप माफी मांगना क्या के लिए कंपेल कर रहे थे राहुल गांधी को, हम देख नहीं रहे थे क्या? नहीं बताइए आप क्योंकि आपको इतना संजीदा पत्रकार हम लोग मानते हैं, आप पूछ रहे हैं कि SIT बोल दिया, कोर्ट बोल दिया, अब कांग्रेस पार्टी माफी मांगे नरेंद्र मोदी से। आपका फेवरेट सब्जेक्ट नरेंद्र मोदी, आई एम कमिंग टू नरेंद्र मोदी। नहीं मैं क्यों नहीं, आई एम कमिंग टू नरेंद्र मोदी इन अ मिनट। मैं राहुल गांधी से पूछ रहा था व्हाट इज योर व्यू ऑन नरेंद्र मोदी? दैट्स अ वेरी क्वेश्चन। एनीवे, you are querying. You see, you are also an expert at changing the subject, but you also know one thing, Lalu ji. It's my 6th interview with you. You know, I am also an expert. ना पहले इस पर बात करो ना, पहले इस पर। I'll tell you, Michael. I'll tell you. आप जो राहुल गांधी को, you are frustrated with Rahul Gandhi for 2 reasons. अरे हम नहीं frustrated। The first reason is interrupt मत कीजिए। I believe, I have full faith on Madam Sonia ji and his family. हम लोग के साथ, हम उस परिवार में रहे। You don't have a choice. हाँ बात सुन, अरे You don't have a choice. फिर ये गलतफहमी है। Now, नहीं आपकी गलतफहमी में, पहले आप इसका जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब नहीं, आप इसका जवाब दो कि आप राहुल गांधी को ग्रिल करके ला रहे थे, नंबर 1। वो कुछ बोलना चाहते, आप बोल रहे हो माफी मांगो कि नहीं? Why you are so lenient with नरेंद्र मोदी? और ना भाई लालू जी क्या है नरेंद्र मोदी? नहीं बात सुनिए, आप पूछ रहे माफी। Okay, now have you finished? बहुत सारे लोग इनोसेंट लोग जेल में है और दोषी बाहर है। बहुत देश में जो इनोसेंट है जेल में और दोषी बाहर। आप पूछ रहे थे तो उसके क्लियर हो गया। Okay, now you come back. नहीं बात सुनिए। Now you come back. आपको मौका है। Now you come back to the subject. I'll tell you why now. Lalu ji, you listen. You listen to me. You listen to me, Lalu ji. You are frustrated with Rahul Gandhi for 2 reasons. No. Reason number 1. Listen to me. Then you can disagree without listening to the reason. First, he is the person because of whom you cannot fight an election. He is the person who will ensure that you are out of parliament. He is the person because of whom, because his decision on the ordinance has put your political career at stake. Question number 2. Ordinance मेरे लिए नहीं था, ये सच नहीं है। Reason number 2, you are upset with Rahul Gandhi during that interview because in that interview he refused to acknowledge your name. He refused to accept. No. Allow me to complete. Allow me to complete. Your question, allow me to. I was watching your question. I'll tell you. And very clearly he answered you. No, he didn't. Please, Lalu ji answered me very clearly that I am not. यार नॉट देखते आप मेथोडोलॉजी से करता है। नहीं बोला अब सुना हियर। नाउ लेट मी। अब हमको कोई गुस्सा। लालू जी आप मेरी बात। लालू जी, Rahul Gandhi refuses to acknowledge a political alliance with you. He knows that today you are convicted in an act of corruption. Therefore, he knows that if he says I'm going to do a tie-up with Lalu Prasad, it will impact him. I know. That's the second reason you are frustrated. बात सुनिए। That's the second reason you are frustrated. I know कि नरेंद्र मोदी and his man and some high people are very interested to at any cost the tie up with the Lalu and कांग्रेस पार्टी नहीं हो। ऐसा क्वेश्चन बोलो, ऐसा बात बोलो, ऐसी बात बोलो कि लोग भड़के। ये कोशिश हो रही है। आप जो इतना इंटरेस्टेड थे नरेंद्र मोदी के मामले में कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगा कि नहीं, आप वो नहीं देना चाहते थे या आप कहे लिए होगा इंटरव्यू राहुल गांधी का, तो मैं ये जानना चाहता हूं आपके उस क्वेश्चन का जवाब। मैंने ये कहा था कि अगर हम होते तो अर्णव भाई को। लालू जी अभी देखिए आप